Very good morning, everyone. This is Vipin Kumar Gupta. I am the faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. My dear students, once again we are here to read the second poem that is prescribed in the syllabus of class 11th. Second poem, The Laburnum Top. First poem already we have read, my dear student, a photograph, and today we are here to read the second poem, The Laburnum Top, that is composed by an English writer, Ted Haggis. First of all, let us see who was Ted Haggis. Ted Haggis, who was born on Yorkshire, England. He was born on 17 August 1930. He was a great English poet, translator, and children's writer. The critics used to rank him as one of the best poets of his generation. So this is the views of Ted Haggis. Now let us see about the poem The Laburnum Top. This whole poem has been set up in three stanzas, and although this is a very small poem, you can see the whole poem is divided into three stanzas. First stanza, second stanza, and third stanza. So first of all, let us see about the poem The Laburnum Top. What is laburnum? First of all, laburnum is a kind of tree which branches are hanging. Laburnum, it's a kind of tree. You can see here the descriptions also it is given. A short tree that with hanging branches. Its flowers are yellowish and its seeds are poisonous. Laburnum is a kind of short tree with hanging branches and whose flowers are yellow and seeds are poisonous. So in this chapter we have to read about laburnum top, means about the tree. This poem has been divided into three paragraphs, three stanzas. First and third stanzas are the same, means the condition what we will find in the first and third stanza it is same, because in first stanza the laburnum top is all alone, very silent, and third paragraph also the same condition. But second paragraph in the middle of the poem we will find a new life to this laburnum tree. So let us see from the very first line, the laburnum top. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves allowing all its seeds fallen. From the very first line in the first paragraph, we are reading about the status, the condition of the laburnum top. The laburnum top is silent. The laburnum tree that was there, it is looking very silent, quite still, पूरी तरह से बिल्कुल शांत है. In the afternoon, yellow September sunlight. It is the month of September. September का month है, and in the sunlight, the flowers, the yellowish, they are looking very yellowish. The leaves and the flowers of that laburnum tree that was looking yellowish. A few leaves allowing all its seeds fallen. कुछ उसके जो लीव्स हैं laburnum top के वो yellowish हो गए हैं और उसके सीड्स जो हैं वो सब गिर चुके हैं, बिकॉज इट वॉज द सीजन ऑफ ऑटम. तो ऑटम सीजन में माय फ्रेंड्स आपको पता होगा ये सारे जो लीव्स होते हैं येलोइश होने लगते हैं, सीड्स और जो उसके लीव्स होते हैं वो टूट कर गिरने लगते हैं. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग देख सकते हैं दैट इज द कम्प्लीटली द सिचुएशन ऑफ आइसोलेशन. बिल्कुल शांत, बिल्कुल laburnum top बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल शांत एकदम पड़ा हुआ है. वो laburnum top जो ट्री है बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल अकेला है. That's why it is written from the very first line that laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. September month में afternoon में जो sunlight की वजह से बिल्कुल yellow laburnum top दिख रहा है. इसके leaves जो yellowish होने लगे हैं और इसके सारे सीड्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट, इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, बट ये ऑटम सीजन की वजह से सारे सीड्स जो वो गिर चुके हैं.
सो इन फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि लैबरनम टॉप जो बहुत ही साइलेंट है, बिल्कुल शांत है. Now see the second paragraph. Till the goldfinch comes. Goldfinch again one new and very important content of this poem, because only two content are very important. First is the laburnum tree and the second is the goldfinch, that is a kind of bird. Here you can find about goldfinch. Goldfinch, a small singing bird with yellow feathers on its wings. गोल्डफिन हु इज अ वेरी स्मॉल सिंगिंग बर्ड, जो कि सिंगिंग करती रहती है, स्मॉल बर्ड है, हैविंग येलो फीदर्स, जिसके जो फीदर होते हैं येलो होते हैं, लुकिंग लाइक गोल्ड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्ड फिंच. ये जो बर्ड है वो गोल्ड फिंच उसका नाम इसीलिए है कि उसके जो फीदर होते हैं येलो होते हैं, बिल्कुल गोल्ड की तरह से, एंड इट्स अ स्मॉल बर्ड हु इज ऑलवेज सिंगिंग. So in the second paragraph, let us see, till the goldfinch comes with a twitching chirp. So फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा माय फ्रेंड कि हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में देखे कि वो बिल्कुल लैबरनम टॉप बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट अकेला पड़ा हुआ है. बट इन सेकेंड पैराग्राफ, एज सुन एज गोल्डफिंच कम्स देयर अलॉन्ग विद द यंगर वंस, गोल्डफिंच वहाँ आती है विद द ट्विचिंग चर्प, और चर्पिंग करते हुए चहचहाते हुए चारों तरफ पेड़ के चक्कर लगाती है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. और वो पहले उस लाबरनम के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाती है इधर उधर ब्रांच में, और उसके बाद स्लीक एज अ लिजार्ड, और लिजार्ड की तरह से, बिल्कुल लिजार्ड में छिपकली की तरह से उसके अंदर एंटर कर जाती है. बट इट वॉज लुकिंग वेरी स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट. और जैसे जो से आप वो लिजार्ड होती है, बिल्कुल अलर्ट होती है, हमेशा प्रिकॉशंस होती है, वैसे ही वो गोल्डफिंच बर्ड जो आते हैं अंदर, बिल्कुल उसके ब्रांचेस के अंदर एंटर कर जाती है अपने यंगर वंस के साथ. सी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्टर्स ऑफ चिटरिंग. और जैसे ही वो पेड़ के अंदर एंटर करती है, वो बिल्कुल चर्पिंग की, चिटरिंग की आवाज़ होने लगती है, बिकॉज गोल्डफिंच भी थी और उसके साथ उसके बच्चे भी छोटे छोटे थे. वो अंदर उस लाबरनम ट्री के अंदर एंटर करते हैं एंड चर्पिंग की वॉइस स्टार्ट होने लगती है. एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग, और ट्रेमर मीन ट्रेमलिंग, कंपन जो है पूरा उनके पंखों की, विंग्स की इधर उधर होने लगती है. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जिससे पूरा जो लाबरनम जो ट्री है वो ट्रेम्बल करने लगता है, हिलने लगता है, शेकिंग करने लगता है, क्योंकि गोल्डफिंच जो बर्ड है वो अंदर आती है अपने बच्चों के साथ, बहुत इधर उधर चर्पिंग करने लगती है. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और बिल्कुल इंजन की तरह से वो गोल्डफिंच बर्ड अपने बच्चों के साथ उसके अंदर राउंड राउंड घूमने लगती है. शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लॉट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. और इधर उधर निकलते हुए पूरा फिर से बाहर निकलती है ब्रांच एंड पे, फिर से वो अंदर जाती है वो गोल्डफिंच. मीन जितना देर वो गोल्डफिंच इधर राउंड करती है, चर्पिंग पूरा होता है, और ऐसा लगता है कि उस लाबरनम टॉप को एक बर्थ मिल गया, ऐसा लगता है. मीन्स दैट द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच हैज़ गिवन अ न्यू लाइफ, अ न्यू बर्थ टू लाबरनम टॉप. लाबरनम जो ट्री है बिल्कुल साइलेंट, हमेशा शांत अकेला बिल्कुल रहता है, लेकिन गोल्डफिंच के आने से वो एक अलग तरह की चर्पिंग का साउंड हो गया है, और ऐसा लगता है कि लाबरनम टॉप को एक नई लाइफ मिल गई है. बट द थर्ड पैराग्राफ, you can see my dear student, then with airy delicate whistle chirp whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. Already I have told you my dear student, first and the third paragraph the condition of laburnum top is same. जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में लैबरनम टॉप बिल्कुल साइलेंट रहता है, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल कोई साउंड नहीं, उसके लीव्स येलो हो चुके हैं, सारे सीड्स गिर चुके हैं. लेकिन सेकंड पैराग्राफ में जैसे गोल्डफिंच जाती है वहाँ चर्पिंग होने लगता है, एक न्यू लाइफ मिल जाता है लैबरनम टॉप को, और वो लैबरनम टॉप को ऐसा फील होता है कि वो अकेला नहीं है, बहुत सारी चर्पिंग वहाँ पर हो रही हैं. लेकिन थर्ड पैराग्राफ में फिर से कंडीशन वही हो जाता है जैसे ही वो गोल्डफिंच बर्ड जो वहाँ से चली जाती है. देन विद एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट. और उसके बाद वो गोल्डफिंच अपने यंगर वन के साथ चर्पिंग करते हुए पूरा फिर से राउंड लेती है, एंड सी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई. और उसके बाद वो गोल्डफिंच जो बर्ड है अपने बच्चों के साथ, यंगर वन के साथ, फिर से आकाश की तरफ उड़ जाती है और चली जाती है. एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. और लैबरनम जो ट्री है फिर से बिल्कुल अकेला हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, और बिल्कुल डेजर्टेड
एरिया की तरह से हो जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट, इन द फर्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ वी हैड फाउंड द सेम कंडीशन अबाउट द कंडीशन ऑफ लाबरनम ट्री. लेबरनम जो ट्री है बिल्कुल साइलेंट फर्स्ट पैराग्राफ में भी है, और थर्ड पैराग्राफ में जैसे ही गोल्डफिन जाती है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है. एंड इन द सेकंड, इन द मिडिल ऑफ द पोएम वी हैव कम टू नो अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ बर्ड दैट इज गोल्डफिन. It came there, it started rounding here and there, it enters into the thickness of the tree along with the younger ones and chirping here and there. The whole tree that was trembling and thrilling like the engine of the family. And after that, the goldfinch bird went towards the sky along with the younger one. And again the laburnum subsides to empty. और फिर से laburnum जो ट्री था वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, बिल्कुल शांत हो गया. In this way, my dear student, we have come to know the whole poem that has been divided into 3 paragraphs, 3 stanzas, first, second and third, and first and third stanzas are same. In the middle, the second stanza that has changed and the condition of the laburnum top, and it has given a new life to laburnum tree. So my dear student, I hope you have understood the summary, the substance of the poem. In the end of the poem, you will get a word meaning and a question which you have to write in your answer book. Beside this, you have to write a short summary of the poem. These questions also you have to write in your answer book, and you have to write a short summary of the poem also. So I hope you have got the substance of the chapter, the poem Laburnum Top. So in my next video again we will meet, my dear student. Okay, thank you.